Greetings students, welcome back to class. It's Lifeline of National Economy, 7th and last chapter of Geography. Students, in this chapter we will discuss about means of transport, roadways, railways, waterways, airways, communication, international trade, tourism as trade. Transport. Transport play an important role in the economy of the country. Because of transport, raw material reach the factory and finished product reach to consumer. यानी जो रॉ मटेरियल है उसको फैक्ट्री तक लेके जाते हैं और जो फिनिश गुड्स फिनिश यानी जो प्रीपेड जो तैयार माल है उसको हम कंज्यूमर तक लेके जाते हैं. The pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over the space, and therefore the efficient mean of transport are prerequisite or for the fast development. तो जो ट्रांसपोर्ट है उसी की बदौलत मेनली उसी पर डिपेंड करती है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. The next is there, apart from transport, the aids and the mode of communication like telephone and internet makes the continuous flow of information possible. Some statements are there. Today India is well linked the rest of the world despite its vast size, diversities, linguistic and social cultural plurality. Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema and internet etc. have been contributing to its social economic progress in many ways. And the next one, the trade from local to international level have added to the strength of its economy. And the last one is, it has enriched our life and added significantly to growing service and facilities for the comfort of life. So next is mean of transport. तो मेनली हमने डिस्कस भी किया था मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में लैंड, वाटर एंड एयर. और जो लैंड है उसके अंदर हम यहाँ देख पा रहे हैं रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन, inland and overseas, domestic airways and the international airways, public undertaking and the private airways या airlines. means of transport के अंदर ये हमने डिस्कस किया था. as on the screen it's the roadways. Statement related to roadways. India has one of the largest road network in the world, aggregating to about 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट. यानी ओवरऑल है ये मैक्सिमम तो नहीं है क्योंकि बढ़ चुका है. एवरी डे द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन ऑफ द रोडवेज. तो ये जो अकॉर्डिंग 2015 के अकॉर्डिंग है ये जो फिगर गिवन है. इन इंडिया रोडवेज हैव प्रोसीडेड रेलवेज. अब जो रोडवेज है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ओवर रेलवेज. दे स्टिल हैव एन एज ओवर द रेलवेज इन व्यू ऑफ द एज विच दे ग्रो बी बिल्ट एंड मेंटेन. यानी इजीली इनको कहीं भी बनाया जा सकता है और कहीं भी मेंटेन किया जा सकता है. किसको? रोडवेज को. देयर इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, द ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट ओवर रेलवेज ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स. तो कुछ रीजन्स हैं जो रोडवेज है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. The construction cost of road is much lower than railways. तो easily बनाया जा सकता है, cost कम है. The road can traverse completely more dissected and the undulating topography. यानी इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी मुश्किल है. वैसे रोडवेज की इजीली है बट रेलवे की कंस्ट्रक्शन मुश्किल है. रोड कैन नेगोशिएट द हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स सच एज द ट्रेवेंस माउंटेन्स और हिमालयज. तो इसको जैसे माउंटेन्स वगैरह में इजीली बनाया जा सकता है बट रेलवेज का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है.
Road transport is economically in the transportation of a few persons and relatively smaller amount of goods very short distance. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी सही है ये, और डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जो रोडवेज है आपका डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज द फीडर टू अदर्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फीडर का यूज यहाँ किस तरीके से, क्योंकि अगर रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो जाए ना, उसके लिए सामान जो है वो रोडवेज से ही आएगा। इवन आप एयरपोर्ट से रिलेटेड का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो भी वो रोडवेज से ही आएगा। नाउ देर आर द टाइप्स ऑफ रोड और रोडवेज इन इंडिया। मेनली 6 टाइप हैं। जो फर्स्ट वन है गोल्डन क्वेड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है गोल्डन क्वेड्रिलेटरल रोड्स की हम यहाँ बात करेंगे। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली टू कोलकाता, चेन्नई टू मुंबई और कोलकाता टू चेन्नई, दिल्ली टू चेन्नई, यानी इन चारों सिटीज़ को आपस में जोड़ने का काम करती है। 6 लेन है ये और 6 लेन सुपर हाईवेज हैं। द नॉर्थ कॉरिडोर लिंकिंग, यानी अगर हम ऊपर से बात करें, एक मिनट, ये आपका ऑलमोस्ट मैप रहेगा, और ऊपर यहाँ कश्मीर है, यहाँ से नीचे जोड़ने का काम करेगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इधर आपका पोरबंदर है और यहाँ सिलचर है। तो ये उसका जो है कॉरिडोर रहेगा। तो हमने डिस्कस यहाँ किया नॉर्थन कॉरिडोर में श्रीनगर से कश्मीर तक, इवन दोनों इसके पार्ट हैं। तो यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी, और ईस्ट वेस्ट की अगर बात करें हम तो फिर वो पोरबंदर से रहेगा सिलचर तक। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ these सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। तो बड़े बड़े शहरों के बीच का गैप कम करना है। These हाईवेज प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो गोल्डन क्वेड्रिलेटरल को बनाने का काम NHAI करती है। नेक्स्ट है NH, जिसकी बात हम करते हैं, जिसको नेशनल हाईवे भी बोला गया है। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दे आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड maintained by the Central Public Works Department. The number of major national highway run in the north, south and east to west direction. Next is their state highways. The road linking the state capital with different district headquarters. मान लो चंडीगढ़ को जींद से जोड़ने का काम हो जाए। These are constructed by the State Public Works Department. SPWD इसको हम बोल सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो डिस्ट्रिक्ट रोड है। डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दिस डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद। तो डिस्ट्रिक्ट रोड को मेंटेन करने का काम करता है जिला परिषद। और उसके बाद है अदर रोड्स। अदर रोड्स लिंक द रूरल रोड्स, यानी गांव के जो रोड है उनसे लिंक करते हैं। एंड विलेजेस विद टाउन्स एंड क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरीज के अंदर। दीज रोड्स रिसीव्ड द स्पेशल इनपुट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो इसके तहत जो गांव के अंदर एक पट्टी वाला रोड होता है, वाइट पट्टी बीच में लगी होती है, तो वो इसी का पार्ट है। The next is there, and next and important also even we can say the border roads. जो बॉर्डर रोड हैं इसका कंस्ट्रक्शन वैसे तो 1960 में किया गया है। 1960 में BRO बनाया गया था। अब इसके अंदर जो है, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग द कंस्ट्रक्ट एंड द मेंटेन द रोड्स फॉर द बॉर्डर एरिया। तो BRO बनाती है बॉर्डर रोड्स को। जैसे चाइना के साथ मेनली जो बॉर्डर है उस पर रोड बनाने का काम किया जाता है।
This organization was established in 1960 for the development of the road and strategic important in the northern and northeastern border area of India. These roads have improved the accessibility in the area of difficult terrain and have helped in the economic development of this area. तो मेनली जो है बॉर्डर के आसपास के जो एरियाज हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना है या आर्मी को वेपन प्रोवाइड करवाना है इजीली ऑन द टाइम. द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द कंट्री. द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853. पहली ट्रेन चली मुंबई से थाने चली और 34 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया था. द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट अबाउट द टर्म रोड डेंसिटी. रोड डेंसिटी होता क्या है? रोड डेंसिटी द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो रोड बने हैं उसको रोड डेंसिटी बोला जाता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री. यानी एक जैसा नहीं है पूरे देश में, किसी स्टेट में ज़्यादा है किसी स्टेट में कम है. The density of roads varies from 10 km in Jammu Kashmir and 375 km in Kerala with the national average of 75. यानी अगर नेशनल एवरेज की बात करें वो तो 75 है, ये बहुत पुराना फिगर है. और केरल में सबसे ज़्यादा 375 है और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 10 किलोमीटर क्योंकि माउंटेनी एरिया है. रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है? कीपिंग इन द व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पैसेंजर. रोड नेटवर्क इज इनएडिक्यूट. अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड एंड दिस लिमिट्स देयर यूजेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स. तो अनमेटल्ड यानी कच्चा रोड है और बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है. नेशनल हाईवेज आर ऑल्सो इनएडिक्यूट टू. मोर एवर रोडवेज आर हाईली congested in the cities and most of the bridges and cultivators are old. यानी जो ब्रिज वगैरह या बनाए गए हैं वो ओल्ड या पुराने मेथड या तकनीक के, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है. रेलवेज की अगर हम बात करें तो यहाँ नेक्स्ट है किसके बारे में मेंशन कर रखा है? रेलवे के बारे में. रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर. इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो गुड्स और पैसेंजर को एक प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट द वेरियस एक्टिविटी लाइक बिजनेस, साइट सीइंग द पिलग्रिम्स अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस. अपार्ट फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स. तो लगभग 150 सालों से ये देश के लिए काम कर रही है, देश को जोड़ने का काम कर रही है. रेलवेज इंडियाज बाइंड द इकोनॉमी लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज द असरलेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. तो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इसका. और पहले तो अलग से बजट भी बनता था रेलवे का, बट ये लास्ट ईयर से इसको कंबाइन कर दिया गया है. रेलवे नेटवर्क. रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं. इंडियन रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ द 7031 स्टेशन स्प्रेड ऑल ओवर द रूट लेंथ 63,221 किलोमीटर विद अ फ्लीट ऑफ द इसमें 7,817 लोकोमोटिव्स एंड 5,321 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स and 4,904 other coaches vehicles and many others are there. और रेलवे के अंदर जो जोन है वो फिलहाल 18 जोन इसके अंदर बनाई गई हैं और 18th जो जोन है वो विशाखापट्टनम है टू बी कंस्ट्रक्टेड. द नेक्स्ट टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे. डेवलपमेंट ऑफ रेलवे की बात हम यहाँ करेंगे. The Indian Railway is now recognized into 16 zone. 16 zone यहाँ मेंशन कर रखा है, but you have to change dear students. There are 17th already और 18th को भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. तो 18th जोन है अब.
और जो 18th जोन है वो है आपकी विशाखापट्टनम। 18th जोन है विशाखापट्टनम। The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by the physiographic, economic, and administrative factor. The northern plain, with their vast level land and high population density and rich agricultural resources, provided the most favorable condition for the growth. यानी मेनली जो प्लेन्स है उसके अंदर ही जो है इसको इजीली कंस्ट्रक्ट किया जाता है. However, a large number of rivers requiring construction of bridges across the wide bands poses some obstacles. तो rivers के ऊपर कुछ problems वगैरह होती जरूर है. In the hilly terrain of the peninsular region, railways tracks are laid through the low hills. जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर से जरूर उसको बनाया गया है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम फेस होती है. नेक्स्ट है इसी की कुछ पार्ट्स हैं यहाँ. द हिमालयन माउंटेन्स रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे lines due to high reliefs, spreads population and the lack of economic opportunities. तो उस एरिया में भी पॉसिबल नहीं है. The next point, likewise it was difficult to lay railways line on the sandy plain of the western Rajasthan, swamp of Gujarat यानी गुजरात का जो रण है कच्छ एक प्रकार से, and forested tracts of MP छत्तीसगढ़ झारखंड, यहाँ भी जो है इजीली कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है. The continuous stretch of Sahyadri could be crossed only through the gaps and passes. तो जो घाट हैं आपके मेनली नॉर्दर्न साउदर्न इंडिया के अंदर वहाँ भी ये पॉसिबल नहीं है. बहुत मुश्किल से उसको बनाया गया है. In recent time, the development of the Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of the passenger and goods in the most important economic region of the country. And it has also faced a number of problems such as the sneaking of tracks in some stretches and the landslides. यानी जो ट्रैक वगैरह खिसकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. And if we talk in the reference of today's railway became the most important in our national economy than all other means of transport put together. However, rail transportation suffer from the certain problems as well as many passengers travel without tickets. तो without tickets भी बहुत सारे लोग इसमें सफ़र करते हैं और ये भी एक मेजर इशू है. Theft and damaging of railway property has not yet stopped completely. चीज़ें चुरा के ले जाते हैं. तेजस का एग्जाम्पल है कि वहाँ यूटेंसिल बर्तन वगैरह थे उनको भी उठा के ले गए थे. People stop the train and pull the chains unnecessarily and this cause the heavy damage of railway. और बिना ज़रूरत के जो चैन वगैरह है वो उतार दी जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है रेलवेज को होती है. तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट फॉर टुडेज. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.